એને જોઈને એમ થયું કે આ કોઈ દિવ્ય વ્યક્તિ છે, બોલાવો. એ વખતે ચેવનમુનિ મહારાજને બોલાવ્યું કે મારા મહારાજા આપને બોલાવે છે, આપને પ્રેમપૂર્વક આપનું સ્વાગત કરવા માંગે છે. એટલે તે આવ્યા. એટલે એને પૂછે છે, આપ કોણ? તો કહ્યું છું એક ભારતનો ઋષિ છું, બ્રાહ્મણ છું. તીર્થયાત્રામાં નીકળ્યો તો કોઈ જલચર મને પગે વીંટાઈ ગયું, મને અહીંયા લઈ આવેલ છે. ઓહો, આ બધા તીર્થોમાં ફેર્યા છો, તો ક્યાં તીર્થ મનુષ્યને પવિત્ર કરે? અયોધ્યા, માયા, કાશી, કાંચી, અવંતિકા, દ્વારાવતી, બધામાંથી કઈ નગરી, કઈ ભૂમિ, કઈ ખંડ, કયો દેશ અને ક્યાં તીર્થો મનુષ્યને પવિત્ર કરે? ત્યારે કે છે, રાજન મનોવાકાય શુદ્ધાનામ બ્રહ્મન તીર્થ પદે પદે, રાજન તીર્થ પદે પદે. હે રાજા, જેનું મન પવિત્ર છે, જેની વાણી પવિત્ર છે, જેની કાયા પવિત્ર છે, જેનું કર્મ પવિત્ર છે, જેનું જીવન પવિત્ર છે, એને ડગલે ડગલે તીર્થ છે, એને વંદન કર્યા. તો આ બધા આજે આપણે ત્યાં તો સ્વયં બિરાજે છે. જ્યારે નરસિંહમાં જ્યારે પ્રહલાદજી એની ત્યાં નરસિંહ નારાયણ ભગવાન પ્રગટ થયા. પ્રગટ થયા પછી પ્રહલાદજી ભગવાનની સ્તુતિ કરી. પ્રહલાદજી જે સ્તુતિ કરી છે એવી ભાગવતમાં બીજા કોઈ હજી સુધી કરી નથી. એક એક મન ઉપર કેટલું બોલ્યા છે. નૈતન મનસ તવ કથા સુવિકુંઠનાથ સંપ્રિયતે દુરિત દુષ્ટમ સાધુ તીવ્રમ કામાતુરમ હર્ષ શોક ભયેષણાર્તમ તસ્મિન કથમ કથમહો પ્રણમામિ દીન. 14 લક્ષણો મનના એ પ્રહલાદજીને કહી દીધા. મન કેવું? કામાતુર, હર્ષ, શોક, ભય, યેષણા, એનાથી ભરેલું. એ મહારાજ હું આપને કેવી રીતે ઓળખી હગું? આવી રીતે સ્તુતિ કરી. ભગવાને એને પ્રહલાદજીને હૃદય સરખા ચાપ્યા. એ વખતે ધર્મરાજા ભગવાનની પાસે ઉભા, આંખોમાં દરદર 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 અશ્રુ આવવા લાગ્યા. ભગવાન પૂછે છે, રાજા ધર્મ, કેમ આંખોમાં અશ્રુ આવે છે? કેમ રુદન કરું છે? નો રૂ. 5 વર્ષના પ્રહલાદને ભગવાન મળ્યા અને હું 55 વર્ષનો હજી મેં ભગવાનને ન જોયા. એ વખતે નારદજી પહોંચી જતા. અરે ધર્મરાજા, તમે શું કરવા આંસુ પાડો છો? પ્રહલાદની ત્યાં તો ભગવાન નરસિંહ સિંહ રૂપે આવી. અડધું માનવ અડધું સિંહનું સ્વરૂપે દર્શન દીધા. તારે ત્યાં તો 16 કલાત્મક મૂર્તિમંત ભગવાન તારી સાથે જ છે. ક્યાં છે? તો કે શકાયનું આજા. તો ભગવાન કેટલા બધા દિવ્યતાનું એને દર્શન કર્યું. અને એ વખતે તેમના દર્શનોથી એ કૃતકૃત્ય બન્યા. તો જેની અંદર ભગવાનનું નામ સંકીર્તન, સદગુરુની કૃપા માનવને પુણ્ય આપે છે. ગ્રસ્તાશ્રમ, ચારે આશ્રમમાં મોટામાં મોટો હોય તો ગ્રસ્તાશ્રમ રહેલો છે. ગ્રસ્તાશ્રમથી ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ ચારેય પુરુષાર્થ એને પોતે પ્રાપ્ત થાય છે. શૈશવે વ્યસ્તવિદ્યાનામ, યૌવને વિશેષિણામ, વાર્ધકે મનિવૃત્તિનામ, યોગાંતે તનુત્યજામ. હજુ જો સિદ્ધાંત પ્રમાણે વર્તે તો ગ્રસ્તાશ્રમ જેવો એકેય ધર્મ નથી, જેમાં શાંતિ, પુષ્ટિ, માંગલિક, ધાર્મિક, દૈવી બધા કાર્યો થાય. જેમાં કોઈના બધાના આપણે સત્સંગો થાય, દાન, પુણ્ય, વ્રત, જપ, તપ, હોમ, એ બધું સત્સંગ અને ગ્રસ્તાશ્રમમાં થાય છે. માટે ધન્યો ગ્રહસ્થાશ્રમમ, એ ગ્રસ્તાશ્રમ ધન્ય છે. જેનું આપણે વર્ણન કરી કે એના કુળની અંદર કુલમ પવિત્રમ, જેનું કુલ પવિત્ર હોય, જન્મી કૃતાર્થ હોય, જ્ઞાતિ ગૌરવશીલ હોય, અને પોતે પ્રભુએ મનુષ્યને 4 વસ્તુ આપી છે.
મનુષ્યને ચાર વસ્તુ કઈ પ્રભુએ આપી છે? પ્રાણે, અર્થે, ધ્યેય, વાચા. મનુષ્ય પોતાના જીવનનું ચાર વસ્તુથી સાર્થક કરવું જોઈએ. એક પ્રાણ. રણતીદેવ રાજાએ જેસીબીને માટે પોતાના શરણાગતિને માટે એને પોતાનું માંસ આપવા લાગ્યા. ઋષિઓએ જેની અંદર પોતાનું શરીર પણ એને અર્પણ કરી દીધું વત્રાસુરને નાશ કરવા માટે. તો પ્રાણે, અર્થ એટલે સંપત્તિ, એ દ્વારા કોઈનું કલ્યાણ થતું હોય, કોઈના દિન દુખિયાના દુઃખ દૂર થતા હોય તો એ સંપત્તિનો સદુપયોગ કરે ધર્મ કર્મ સત્કર્મમાં. પ્રાણે, અર્થે, ધ્યેય, બુદ્ધિ વડે કલ્યાણના કોઈને સાચા માર્ગમાં લઈ જવા, સાચા કર્મમાં જોડાવાના, સત્સંગમાં જોડાવાના. ધ્યેય અને છેવટ વાણી વડે કરી કોઈનું સત્કાર કરવું, સન્માન કરવું અને જેને આશ્વાસન આપવું. આ ચાર રૂપે માનવનો જન્મ સાફલ્ય જ કરે. અને ન કરે તો એને માટે દેવતાઓ શું કે છે? દિક્તમ નરમ પશુ સમમ ભવ ભાર રૂપમ સસૈવ જનની જન દુઃખ બાજા. દેવતાઓ શું કે છે? કરે અને આવું માનવ શરીર લભતે પુરુષો યદા વૈ અજ્ઞાન હેતુ કૃત મોહમદાંધકારમ નાશમ વિદાય તદોદયે વિવેક. ઘણા જન્મના ભાગ્યનો ઉદય હોય, ઘણા જન્મના સુકૃતિ કર્મ હોય, ત્યારે સદગુરુ જેવા એનો સત્સંગ થાય. સત્સંગ થાય એટલે થાય શું? તો અજ્ઞાન અને અંધકાર, માયા, મોહ એ બધા છૂટી જાય અને વિવેકની વૃદ્ધિ થાય, નિર્મલ ભક્તિ થાય, પ્રભુમાં ભાવ થાય અને મનુષ્ય નરમાંથી નારાયણ થઈ જાય. તો એવા ભગવાનની કૃપા સદગુરુ દ્વારા મળે. એમની પાસે જાય તો આવા સદગુરુ, એક એવ સદગુરુ સમાયાતા આગત ભગવાન સ્વયં. આવા એક ગુરુ જો મળી જાય તો ભગવાન એને મળી જ ગયા છે, એમાં કોઈ સંદેહ નથી. ખોટે એમને વંદન કરી અને હું વિરામ પામું છું. દ્રશ્યંતે ત્રુટયોત્ર ચેત संतुष्यता क्षम्यता। आचार्य चरण ने अपने अनुभव एवं अपने निर्भर और इन चारों में से गृहस्थ जीवन कब होता था? जो ही ब्रह्मचर्य आश्रम का काल पूरा हुआ, यानी विवाह से गृहस्थ आश्रम बनता था। गृहस्थ आश्रम कोई सामान्य सी बात नहीं रही। गृहस्थ आश्रम भी एक बहुत बड़ी तपस्या का क्षेत्र रहा, तपोभूमि रहा। आज जैसे गृहस्थ आश्रम माना जा रहा है, जाना जा रहा है, व्यवहार में हो रहा है, ऐसा नहीं था। तपस्वी का जीवन था। संपूर्ण क्रियाओं को गृहस्थ जीवन में व्यक्ति करता था। सभी उस पर 3 आश्रम आश्रित थे। और विवाह के बारे में आचार्य जी ने जैसे बताया, हम सबको बैठे हुए लोगों को अपना ध्यान करना चाहिए। जो सप्तपदी में सप्त मंत्र है, उन मंत्रों का जब हम अपने हृदयंगम करेंगे, निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। अन्यथा कुकर सुकर की तरह जिंदगी। इसीलिए विवाह से गार्हस्थ जीवन प्रारंभ होता था और होता है आज भी। तो विवाह को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, अन्यथा मथुरा का पेड़ा हो जाएगा। जो विवाह किया वो भी पछता रहा है, जो नहीं किया वो भी पछताता है। तो मथुरा के पेड़ा मत मानिए विवाह को, उसको सफल सुखी जीवन होकर जीविए। पति पत्नी का दोनों के जो है, जो प्रेम है, उस प्रेम में भी भगवान प्रकट हुए हैं। तो अपनी बात लंबी न कहते हुए, आज के इस श्री राम विवाह उत्सव पर श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज रामायणी जी से भी अपेक्षा है कि विषयानुकूल ही अगर अपनी बात रखेंगे,
श्रोताओं को आनंद आएगा। श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज रामायणी जी व्यास आदर्श रूपे विराजमान सोनांतकरण एवं पूज्य सदगुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष रूपे विराजमान महाराज श्री महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर जी महाराज, एकनाचार्य जी महाराज, श्री मंडलेश्वर रामकृष्ण जी महाराज, आदरणीय रमाबेन, બધા પૂજ્ય સંત ચરણો, આપ સૌ સજ્જનો, માતાઓ, આ યજ્ઞનો અવસર અને વિવિધ સ્વરૂપે અમારું જીવન યજ્ઞ તરફ જઈ રહ્યું. કાલે જ અમે ચર્ચા કરી હતી. चर्चा यज्ञ के विषय में की थी. यज्ञ हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है. ये महायज्ञ तो बहुत ही पुण्यशाली हो, तपस्वी हो, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो, ऐसे समर्थ महापुरुषों को ही ऐसे बड़े यज्ञ महायज्ञ करने का अवसर प्राप्त होता है. तो अगर यज्ञ जीवन है और परमात्मा यज्ञ स्वरूप है, ये सृष्टि यज्ञ से शुरू हुई है, जगत यज्ञ में है, तो फिर हम सब लोग यज्ञ से वंचित रह जाएंगे क्या? इसलिए कल मैंने जो थोड़ी सी चर्चा की थी कि पुराणों ने हमें पंच यज्ञ करने के लिए आदेश दिए हैं कि हर एक व्यक्ति को, यानी हर द्विजातीय को, द्विज किसको कहते हैं? जिसने भी यज्ञोपवीत संस्कार लिया और गायत्री ग्रहण किया, गायत्री मंत्र, तो सब द्विज है. और हर एक द्विज को पंचयज्ञ करने का अनिवार्य आदेश दिया महापुरुषों ने, पुराणों में. पहला यज्ञ मैंने जो कहा था ब्रह्म यज्ञ. प्रातः काल उठते ही हम कुछ भी ना करें, नहाए नहीं, धोए नहीं, हाथ पैर नहीं धोए, कुछ भी, उठ करके सीधे जैसे नींद से जगे और पहले कुछ भी 3 मिनट या 5 मिनट आंख बंद करके इस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करना, इसका स्मरण करना, वंदन करना. जिस परमात्मा के बिना ये जगत नहीं हो सकता, जिसके बिना हम नहीं हो सकते, जिसके बिना ये जीवन ही नहीं हो सकता. हम सोचते हैं कि हम हैं और हम कुछ करते हैं, हकीकत में हम नहीं करते. अगर भगवान सिर्फ एक दिन के लिए हमें छोड़ दें कि तुम्हारी श्वास तुम जानो, अब हम नहीं चलाएंगे, तो आप सोचो नींद लेने का मौका मिलेगा? और हमने सुना है कि 8 दिन लगातार जगता रहे आदमी वो पागल हो जाता है, सिर्फ 8 दिन में. अगर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे फेफड़े तुम ही चलाओ, ये खून दौड़ता है तुम ही दौड़ाओ, हम नहीं जानते. अभी कुछ समय पहले मेरे से एक सज्जन ने पूछा कि भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां तो शादी कर करके थके नहीं थे क्या? मैंने कहा भैया वो नहीं थकेंगे क्योंकि भगवान है, इंसान थक जाता है. फिर मैं दूसरा उदाहरण दिया, ये भी बहुत पुरानी बात नहीं है. हैदराबाद निजाम के भी 500 घरवालियां थी और लखनऊ नवाब के भी 400 थी. अभी देश आजाद हुआ उस मौके पर. तो अगर अभी का इंसान भी इतनी 500 रख सकता है, तो स्वयं भगवान फिर 16,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं. लेकिन कुछ आध्यात्मिक लोगों ने ऐसा अर्थ किया कि शरीर में 16,000 नाड़ियां हैं और उन नाड़ियों का पति परमात्मा है और वो 16,000 को वही संभालता है. हमारे समझ एक भी नहीं संभलेगी. अगर एक भी बंद हो जाए तो राम बोलो भाई. दूसरी बात तो कि इस शरीर में एक ही आपका हृदय है कि जो खून को पंपिंग करता है, मोटर की तरफ फेंकता है, और ये पूरे शरीर में घूम करके और फिर वापस लौटता है दाहिने हृदय में, तो फिल्टर होता है.
हृदय में जाके फिर से ऑक्सीजन मिलती है और फिर चल पड़ता है। तो अगर ये जो रक्त वाहिनियां हैं हमारे शरीर में जो खून ले जाती है और वापस लाती है, अगर इन सबको सीधी करके लंबी करके अगर मापा जाए तो 16 किलोमीटर की होती है। अब सोचो 16 किलोमीटर पंपिंग करे ऐसी मोटर आज तक दुनिया के किसी वैज्ञानिक ने बनाई है? और वो भी ना सही 90 साल 100 साल काम करती रहे रिपेयरिंग के बिना। आप नहीं कर रहे, सब कुछ परमात्मा कर रहा है। तो हमारे जीवन को ही जिसने खड़ा किया, निर्मित किया और जो चला रहा है उस परमात्मा का ध्यान ब्रह्म हुआ। आप स्नान करने के बाद फिर सूर्य को जल दें, वायु को नमस्कार करें, धरती माता को नमस्कार करें, अग्निदेव को वंदन करें, सभी देवताओं को, कुल देवता इष्ट देवता को वंदन करें। देव यज्ञ हो गया। 2 फूल दें, दीपक रख दें। देखिए पंचक बहुत सस्ते हैं और बहुत सरल है, कोई महंगे नहीं है। तीसरा है कि फिर ये माताओं के समय जाता है, भोजन बनावे तो पवित्र रस से बनावे, जूठा पूठा ना करें, नहाए धोए बिना ना बनावे। तो रोज अग्निदेव ये भगवान के मुख गिने गए हैं, तो 5 आहुतियां रोज देने की। पहली रोटी गौ माता के लिए निकाल देने की और लास्ट अंतिम रोटी कुत्ते के लिए, कुतरा माटे। हास्य कलाकारों कहते हैं कि पहले घर में हमने खवड़ाई दे छली मारे तो क्यों। तो आ एकदम सरल है। આપણે રોજ પિતૃને પાણી ન આપી શકીએ તો દર અમાવસે નો ચૂકીએ, પિતૃતર્પણ કરીએ। અને છેલ્લે કોઈ પણ દ્વારમાં આવેલો અતિથિ હોય, તરસ્યો હોય કે ભૂખ્યો હોય તો એને પવાલું પાણી એ છોટેને એક રોટલો આપી અને જમીએ તો અતિથિ યજ્ઞ થાય। એટલે 5 યજ્ઞ થયા, બહુ મોંઘા નથી। હવે આજે ઘણા લોકો મને પ્રશ્ન કરે છે, ગેસ ચૂલા આવી ગયા, અમારે હોમ ક્યાં કરવું? तो एक बात कहूं कि रोजना 5 आहुति गणो तो महीना ની કેટલી થાય? 150, 151। तो તમે પૂર્ણિમા अथवा अमावस નો નિયમ લઈ લો તો अमावसના દિવસે अथवा પૂર્ણિમાના દિવસે, अमावस को अथवा पूर्णिमा को आप 151 आहुति भगवान को दे सकते हैं, अपने नारायण को दे सकते हैं। एक दिन तो कर सकते हैं। चलो हर महीने नहीं कर सकते, झंझट ज्यादा बढ़ रही है, तो 12 महीने की कितनी हुई? 1800 2000 आहुतियां डाल दे। अब ये भी आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए कृपा करके गुरुदेव ने, बड़े गुरुदेव ने भी रास्ता दिखाया और वर्तमान गुरुदेव भी हमें इस तरह से बुला करके हमारे हाथों से आहुतियां दिला करके हमारे जीवन का जो यज्ञ है उसे पूर्ण कर रहे हैं। ये कृपा है, हम नहीं करने वाले। हमारे साथ कहते हैं कि जिस घर में कभी संत ब्राह्मण के चरण न धुले हो, स्वाहा सुधा शब्द विवर्जितानि, जहां कभी वेद ध्वनि न हुई, स्वाहाकार न हुआ हो, सुधा शब्द से कभी पितरों को जल न दिया गया हो, उस घर को क्या कहते हैं? तो शमशान तुल्यानि भवानि तानि। वो घर नहीं है, वो शमशान भूमि है। गृहस्थ का घर कब तक होता है? जब पंचयज्ञ रोज चलते रहते हैं। तो बिल्कुल छोटे, सरल और सस्ते हम नहीं कर पाते। लोग कहते हैं अब शहर में रहते हैं, गाय नहीं है, रोज गाय की रोटी कहां निकाले, कहां डालें? हम कहते हैं गौशालाएं हैं, एक रोटी की कीमत रोज गिन लो और महीने का 2 गिलास हर महीने आप 15 पोल में गौशाला में पहुंचा सकते हो, या साल का पहुंचा सकते हो उत्तरायण के दिन, और ज्यादा पुण्य मिलेगा। ये यज्ञ नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित, परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ के साथ यज्ञ कौन करेगा? जो यजमान होगा। यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यजनम पूजन, यज्ञ यानी पूजा, पूजने का भाव। किसकी पूजा? परमात्मा की, नारायण की, विष्णु की। विष्णु कौन? विश्व विष्णु, ये विश्व ही पूरा विष्णु का स्वरूप है। अखिल ब्रह्मांड में एक तो श्री हरि।
भगवान राम जब हनुमान जी महाराज से प्रथम मुलाकात होती है तो हनुमान जी महाराज को अपना अनन्य भक्त कह करके उन्होंने गले से लगाया। और गले से नहीं लगाया, गले से लगाते लगाते हनुमान जी जितना रोए थे राम जी भी रोए, दोनों रोए। भगवान कहते हैं हनुमान आप तो हमारे अनन्य है। तो अनन्य की व्याख्या क्या होती है? भगवान राम ने स्वयं बताया, सो अनन्य जाके असी मति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी महाराज ने हर जगह अपने परमात्मा को, अपने स्वामी को, अपने इष्ट को देखा है। हर में राम को देख रहे हैं, ऐसा भगवान राम ने व्याख्या करके उनको अनन्य भक्त बताया। और इसलिए कह दिया तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण से मुझे डबल प्यारे हैं आप। इसीलिए कह दिया कि लखनलाल जी महाराज चराचर में नहीं देख रहे, मात्र भगवान राम के स्वरूप में देख रहे हैं, हनुमान जी देख रहे हैं। नहीं तो बड़ी झंझट की बात थी हो। 13 साल से लखनलाल जी महाराज सेवा चाकरी कर रहे हैं और अभी अभी नई मुलाकात हुई, हनुमान जी को कह दिया कि लक्ष्मण से डबल हो, तो लक्ष्मण इस्तीफा देकर नहीं चले जाते कि संभालो इनको, फिर हम चले गए। 13 साल में हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, नया नया उसका प्रमोशन हो गया। लेकिन नहीं, हनुमान जी महाराज की जो अनन्य भक्ति है, तो जब विश्व में सब जगह परमात्मा को देखेंगे तो हमसे भी होगा, हमारा हमारे यजमान बनेगा। हम यजमान बन गए तो हमारा हर कर्म यज्ञ बन जाएगा। हम चलेंगे तो प्रदक्षिणा होगी, हम बोलेंगे तो स्तुतियां होंगी, हम देखेंगे तो दर्शन होंगे, हम सुनेंगे तो श्रवण भक्ति होगी, वो भी एक होगा, ज्ञान यज्ञ होगा। हमारी हर एक इंद्रिय यज्ञ करने लगेगी। जिस दिन हम परमात्मा को अपने हृदय में बसा करके कण कण में उसी की विभूति को, उसी की सत्ता को, उसी को लीला को देखने लगेंगे, तो उसी यज्ञ के हमारे जो यज्ञ अधूरे रह जाते हैं, हम नहीं कर पाते। तो ऐसे हमारे जो सदगुरु होते हैं, महापुरुष होते हैं, हमें प्रेरणा दे करके महायज्ञों का आयोजन करके यजमान के रूप में हमें बिठा देते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई यजमान तो 9-10 ही बैठे हैं, बाकी हम लोग तो रह गए। नहीं, आप सब लोगों को उस यज्ञ में कुछ ना कुछ सम्मिलित है। आप आहुति दे रहे हैं, सिर्फ वो तो होम यज्ञ है, लेकिन मैंने कहा ना यज्ञ हर तरह से होता है। द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, जप यज्ञ है, ध्यान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है। आप आध्यात्मिक ग्रंथों का चिंतन कर रहे हैं तो स्वाध्याय यज्ञ हो रहा है। तो विविध इस विराट यज्ञ के स्वरूप को आपको ऐसे महापुरुष आपको प्राप्त करवा देते हैं, हमारे द्वारा प्राप्त हुआ। ज्ञान यज्ञ भी चल रहा, होम यज्ञ भी चल रहा, स्वाध्याय यज्ञ भी चल रहा, तीर्थ रूपी तीर्थ दर्शन का यज्ञ चल रहा, और हमारे द्वारा दिया हुआ भोजन यज्ञ भी चल रहा। बड़े गुरुदेव कहते थे रोटी पे रोटी रखना, ईंट पे ईंट नहीं रखना। तो उस यज्ञ में आज एक और नया यज्ञ जुड़ गया। आज विवाह पंचमी है, भगवान श्री राम का विवाह आज के दिन हुआ था, आगामी शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन ये विवाह पंचमी है। इसलिए आज भगवान का विवाह भी धूमधाम से मनाएंगे। अगर एक मनुष्य का जन्म और मनुष्य का विवाह भी धूमधाम से मनाया जाता है तो भगवान का तो मनाना है, क्योंकि राम का ही भगवान राम का ही महायज्ञ हो रहा है। विवाह को भी यज्ञ कहा, धनुष यज्ञ कहा। देखिए हमारे जो 16 संस्कार होते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, ऋषि परंपरा में, हर एक कर्म के साथ भगवत पूजन, देव आराधन और होम जुड़ा हुआ है। 16 संस्कारों में यहां तक कि अग्नि संस्कार जब दिया जाता है तो उसमें भी जो वेद मंत्र बोले जाते हैं उसमें इस देह रूपी इस द्रव्य को अग्नि में आहुति देने के रूप में ही बोले जाते हैं। वो अंतिम आहुति है जीवन की, जिसको हम अग्निदान कहते हैं, वो हकीकत में इस जीवन के यज्ञ की पूर्णाहुति का अंतिम आहुति का स्वरूप है। हम जीवन भर यज्ञ में जिए और अंत में हमारा जीवन यज्ञ में समर्पित हो गया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मम हरे ब्रह्माग्रो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवेतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। तो विवाह भी एक यज्ञ है।
इसलिए विवाह में हमारे ऋषियों ने बहुत प्यारी बात कही थी, जितने भी द्विजाति हैं उनको नित्य होम करना ही चाहिए, उनके घर में 5 होम तो नित्य होना ही चाहिए। तो जब विवाह होता था तो विवाह के समय जिस अग्नि में होम किया जाता था, शांति होम और लाजा होम, तो लाजा होम के बाद फेरे लग जाने के बाद उस अग्नि को वो दंपति संभालते थे अपने घर में। हरे द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों, वो अग्नि, उसी अग्नि में रोज रसोई बनती, उस अग्नि को बुझने नहीं दिया जाता, उसी अग्नि में रोज 5 आहुतियां पड़ती। अगर घर में कभी कोई सूतक आ गया, जन्म सूतक या मरण सूतक, तो उस अग्नि में उतने दिन होम नहीं होता, तो उस अग्नि को पड़ोसी को दे दिया जाता कि भैया 8 दिन 10 दिन संभालना, उसके बाद हम वापस आपके घर से ले आएंगे। और फिर और जब व्यक्ति की मृत्यु होती तो उसी अग्नि के द्वारा उसको अग्निदान दिया जाता है। ये था यज्ञ का स्वरूप हमारा। यहां संसार में माचिस से अग्नि नहीं जलाई जा सकती थी। आज भी देखते हैं कि जब शमशान यात्रा निकलती है तो हंडी में आग घर से साथ में लेकर लोग चलते हैं। क्यों घर से साथ में लेकर चलते हैं? आज हम लेके तो चलते हैं, लेकिन वो अग्नि संभालना भूल गए। हकीकत में विवाह के समय जिस अग्नि में होम होता था वही अग्नि हमको अग्निदान में मिलती थी और यज्ञ की पूर्णाहुति होती थी। इसलिए भगवान राम के विवाह को विवाह नहीं कहा, यज्ञ कहा है। धनुष यज्ञ सोनी रघुकुल नाथा, हरे से चले मुनिवर के साथ। भगवान राम ने भी विवाह हो रहा है ऐसा नहीं सुना, ऋषियों ने सुनाया, विश्वामित्र जी ने, यज्ञ हो रहा है। तो भगवान राम भी वही परिचय देते हैं लखनलाल जी को, तात जनक तनय है सोई और धनुष जगित ही कारण होई। ये वही है जनक तनया वेदे ही, जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। तो विवाह भी एक यज्ञ का स्वरूप है। भगवान राम जनकपुर पहुंचते हैं। भगवान की रूप माधुरी को देख करके जनक जी महाराज सबसे पहले मुग्ध होते हैं। विश्वामित्र जैसे पहुंचते हैं, कहा उनाद सुंदर 2 बालक। देखिए रामायण में मुख्य रूप से 2 विवाह हैं, एक भगवान शिव का और दूसरा भगवान राम का। भगवान शिव के विवाह में थोड़ी गड़बड़ हुई, क्यों? कि भूत प्रेत उनके बारात में ही साथ आए हुए थे। भगवान राम के विवाह में कोई गड़बड़ नहीं हुई। शिव का विवाह फिर कभी, आज तो राम का विवाह करना है, भगवान राम का। जनक जी महाराज जब मुग्ध होते हैं भगवान राम को देख करके तो पूछते हैं, कहा नाथ सुंदर को बालक, बड़े सुंदर लग रहे हैं। ये मुनिकुल तिलक, ये नवकुल पालक, ये मुनि कुमार है या राजकुमार है? देखिए जनक जी महाराज को विदेह कहा गया है कि जिनको देह का कोई भान नहीं रहता, देह से ऊपर उठे हुए हैं, आत्म स्वरूप में ही जो रहते हैं। इसलिए जगत का सौंदर्य, जगत की चीज जिनको आकर्षित नहीं करती, उनको विदेह कहते हैं। आज जनक जी महाराज भगवान राम के स्वरूप को, उनके सौंदर्य को, उनकी देह सुषमा को देख करके एकदम आकर्षित हुए। तो कहा नाथ सुंदर 2 बालक, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये मुनिकुल तिलक, मुनि कुमार है या राजकुमार है? भाई मुनियों के पास राजकुमार भी रहते थे शिक्षा लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए, तो वो भी हो सकते हैं। और मुनि कुमार स्वयं भी धनुर्विद्या सीखते थे, तभी तो दूसरों को सिखाएंगे। जो ज्ञान स्वयं गुरुओं में नहीं होगा दूसरों को सिखाएंगे। तो धनुष्मान साथ में होने के कारण ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुनि कुमार है या राजकुमार है। तो जनक जी महाराज ने जब ऐसा पूछा तो विश्वामित्र जी ने कहा, आपको कैसे लग रहे हैं? आप तो ज्ञानी पुरुष हैं। तो जनक जी ने बहुत प्यारी बात कही, ब्रह्म जो निगम नहीं कही गावा उभय वेश धरि के सोया। सहज मेरा रूप मन मोरा, मेरा मन सहज वैराग्य है, मेरा मन ही वैराग्य है, इसलिए जगत में कभी आकर्षित नहीं होता। और अगर आज मेरा मन आकर्षित हो गया है तो मुझे लग रहा है जिसको वेद नेति नेति कहते हैं, जिसको ब्रह्म के रूप में वेदों ने कहा है, लगता है 2 रूप धारण कर चुका है। क्योंकि मेरा मन आकर्षित हो गया तो निश्चित है परमात्मा है। उभय वेश धरि की सोया, क्या वही है क्या? तो विश्वामित्र जी को थोड़ी हंसी आ गई कि गैस अच्छा लगाया,
तीर निशाने पे जा रहा है। विश्वामित्र जी हंसते हुए कह रहे हैं, वचन तुम्हारे की हो लगी का, क्या आपका वचन कभी झूठा हो सकता है? समर्थन देने जा रहे थे कि आपकी बात झूठी नहीं हो सकती, लेकिन जैसे विश्वामित्र जी ने से कहा कि आपका वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, तो मन मुस्काए राम सुनाए, भगवान राम ने थोड़ा सा सिर झुका दिया और धीरे से मुस्का दिया। क्यों मुस्का दिया? अरे भाई विश्वामित्र जी परिचय तो दे रहे हैं, उसमें मुस्काने की क्या बात थी? यहाँ हंसी का कोई सवाल ही नहीं था, कोई मजाक तो हुई नहीं थी। मुस्का क्यों गए? इसलिए मुस्का गए कि ब्रह्म के रूप में परिचय दे रहे हैं। भगवान राम कहते हैं यहाँ दामाद होने को आया हूं, ब्रह्म होने को नहीं आया। अगर अभी से ब्रह्म हो गया तो फिर विवाह कैसे होगा? क्योंकि विवाह तो साकार में होता है। परमात्मा की मुस्कान को कहा माया का स्वरूप है। जैसे भगवान ने मुस्का दिया और माया ने तुरंत आवरण डाल दिया, तो विश्वामित्र जो समर्थन देने जा रहे थे कि हाँ परमात्मा है, उन्होंने अचानक बात पलट दी और कहते हैं रघुकुल मणि दशरथ के जाए। रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ममहित लागी नरेश पठाए, कह तो दिया कि दशरथ जी की कुमार है, उनके पुत्र हैं, लेकिन तुरंत दूसरी बात बीच में उन्होंने अड़ा दी, मेरे लिए भेजे। ये भाई मेरे तेरी की भाषा संतों में कहां से आ गई? ऐसे तो सुना जाता है कि परमात्मा सब में है और सब का है और समरूप, समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषेति प्रिय। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं सब में समरूप हूं, विश्वरूप रघुवंश मणि। और विश्वामित्र जी का हमारे लिए भेजे, मेरे लिए हो। जनक जी महाराज ज्ञानी पुरुष थे, उनको भी बड़ी हंसी आई कि ये संतों की भाषा में आज ऐसा सुनने को मिला कि यहाँ भी मेरे लिए और तेरे लिए होता है। विश्वामित्र जी इसलिए घबरा गए कि ये देख करके लट्टू हो जा रहे हैं, इतने इनको खूबसूरत लग रहे हैं, और मैंने कह तो दिया कि राजकुमार हैं, तो कहेंगे राजकुमार बाबा लोगों के साथ थोड़ी अच्छे लगे, आईने दीजिए हमारे महल में जरा, हम ही स्वागत करेंगे इनका। तो वहां मुश्किल से तो हम मांग के लाए, अभी हमसे छीन लेंगे। तो विश्वामित्र जी ने ब्रेक लगा दी उनको, ये तो मेरे लिए भेजे। लेकिन जनक जी भी ज्ञानी पुरुष थे, कहा भले ये आपके लिए, आप हमारे लिए हो जाओ। आप अगर अकेले आते तो ठीक है, बाद में आपका विश्राम अच्छा था, लेकिन अब आप बाग में विश्राम नहीं करेंगे। तो जनक जी ने उनको अपने घर में जाकर के विश्राम दिया। महल में कहां ठहराया भगवान को? तो तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, सीता जी जिस महल में रहती थी, राजकुमारी का जो महल था, देखिए महाराजाओं में महारानियों का निवास अलग होता, महाराज का स्वयं का निवास अलग होता पर्सनल, राजसभा अलग होती, राजकुमार का सदन अलग होता, राजकुमारी का महल अलग होता। सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जाए, जिसमें वे नहीं रहती है माँ भगवती सीता जी भक्ति स्वरूपा, उसके सौंदर्य को कोई वर्णन ही नहीं कर सकता था। वो सबसे खूबसूरत महल था। तो भगवान राम को कहां ठहराया जनक जी ने? सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां वास लय दीन भुआला। सुखद सब काला का अर्थ होता है एयर कंडीशन। सब काल में तो हर एक ऋतु में कंफर्ट, ठंडी हो गर्मी हो वर्षा हो कुछ भी हो, मतलब वातानुकूलित। देखिए वातानुकूलित तो सिर्फ भक्ति ही है जगत में, बाकी कहीं कोई जगह वातानुकूलित नहीं है। सर्ववस्तु भयावह भुवनम वैराग्य में भयम। जगत में हर चीज जो आज सुख दे रही है कल दुख दे जाएगी, जो आज अच्छी लग रही है कल कड़वी लगेगी, आज जो अनुकूल है कल प्रतिकूल हो जाएगी। हर चीज और हर व्यक्ति अगर सदा अनुकूल है तो मात्र भगवत प्रेम, मात्र भगवत संबंध, मात्र भगवत भक्ति ही है जो सदा आनंद है। सदा दिवाली संत घर में 12 मास बसंत। तो भगवान राम को ठहराया कहा देव जी के महल में। जनक जी ने कहा होगा कि बेटी बहुत महंगे मेहमान आए हुए हैं, तो जरा 2-4 दिन मम्मी के साथ रह लीजिए, ये वीआईपी मेहमान है, इनको यहाँ ठहराएंगे। तो भगवान को सुंदर सदन में ठहराया गया। उसके बाद फिर भगवान ने जो अपनी रूप मोहनी प्रकट की, पूरा जनकपुर उनके स्वरूप में मुग्ध हुआ। क्या बालक, क्या युवा, क्या वृद्ध, क्या पुरुष, क्या वहां की महिलाएं, तो एक रूप मोहनी। और फिर भगवान का वो वीर स्वरूप,
कि जो हजारों राजाओं के बीच में जहां शिव धनुष खिसका तक नहीं था लोगों से, तो भगवान ने उसको भंग किया। तो ऐसे तो रसिकों का प्रसंग है, और कोई रसिक ही बोले तो, और हकीकत कहूं अगर समय की मर्यादा हो तो राम विवाह की कथा नहीं करनी चाहिए। उसमें भी अगर डुबकी लगाना है तो फिर टाइम की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो भगवान राम का जो विवाह है उसकी व्याख्या हमारे महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास जी महाराज करेंगे। और वैसे तो विवाह सुनने से, बात करने से उतना आनंद नहीं आएगा जितना देखने से आएगा। और ऐसे आज तो विवाह की झांकी प्रस्तुत करें, ऐसे कुछ रसिक लोग जो मिथिलापुर के, जनकपुर के उधर के ही भगवान राम के विवाह में जैसे गाए गए गीत थे, इस टाइप के गीत गा गा करके भगवान को आप भी गाते हैं ना गुजराती में, तो आज गुजराती में नहीं तेरहुती में होगा, उधर की भाषा में चलेगा। तो आपको एक झांकी आज देखने को मिलेगी राम विवाह की। तो एक यज्ञ के साथ दूसरा यज्ञ, ये धनुष यज्ञ, ये विवाह यज्ञ, और उसमें सौभाग्य है कि आज भगवान राम का विवाह का ही दिन है, विवाह पंचमी का दिन। तो उस विवाह का आनंद तो रात में लेना ही है। मैं समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा क्योंकि महाराज से लेकर आशीर्वचन भी लेना है। और स्वयं महाराज ने आपके लिए आज्ञा दिया है, आप विवाह कराइए। आप ही कराइए, आज आपकी बारी है आज। इसलिए राम विवाह का विशेष विवेचन हमारे महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास जी महाराज के द्वारा सुनेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। एक छोटी सी झांकी अपने सामने प्रस्तुत किया आपने। वस्तुतः श्री जगजननी भगवती जानकी का संबंध भगवान राम के साथ विवाह के बाद ही हुआ। उसके पहले किसी भी आज के भी लड़का लड़की का विवाह के बाद ही संबंध होता है। गुजरात की थोड़ी अलग आजकल देखता हूँ प्रथा हुई है। वो पहले ही क्या होता है, वो छेका हो जाता है, उसके बाद लड़का लड़की दोनों एक हो जाते हैं। ऐसा पहले नहीं था। तो विवाह के बाद संबंध हुआ था। हम उनको अपनी माता माने, भगवान तो है ही पिता। मुझे 5 बार जनकपुर में विवाह के काल पर जाने का अवसर मिला। अयोध्या से बारात 2 बार बृहद रूप में गई, दोनों में मैं गया और बड़े विशाल संगठन के द्वारा था। अच्छा हुआ, आनंद आया। पूरे संपूर्ण अयोध्या से चलकर उत्तर प्रदेश के जो जिले पड़ते हैं वहां पर कार्यक्रम होते थे। फिर जहां गंगा पार करके बिहार प्रारंभ होता है, विवाह के चारों पड़ाव पड़ते थे और खूब आनंद आता रहा। हम लोग जब जनकपुर, जो वर्तमान जनकपुर है, उसके निकट मुजफ्फरपुर के बाद पहुंचते थे तो बारात, चूंकि हम लोग राम जी के बारात लेकर के, अब एक व्यवस्था थी कि नेपाल भारत में संबंध होगा, राम सीता के जो आध्यात्मिक संबंध के नाते हमारा संबंध है उसके नाते होगा, और एक जो हम सब सनातनी है एक दूसरे से जुड़ेंगे, इस दृष्टि से बारात जाती थी। तो हम लोग कम से कम भगवान राम को, जो राम उपासक है, बाप से कम तो नहीं मानते हैं कोई भी। हमारे पिताजी हैं उसके आगे और जितना मान लेंगे, हमारे इष्ट है, परात्मा पर ब्रह्म है। लेकिन आज भी जनकपुर वाले भगवती जगजननी जानकी को जैसा हम मानते हैं ऐसा नहीं है। हमारी बेटी है और अधिक तो मानते हैं हमारी बहन है। तो जो बेटी और बहन का उनका नाता है, और हम लोग जो बारात लेकर जाते थे तो वो चुन चुन कर गाली देते हैं। 2 दिन के बाद आने वाले हैं श्री महामंडलेश्वर कौशल किशोर दास जी महाराज, वो भी बताएंगे। खूब गाली देते थे, ये लोग राम जी की ओर से आए हुए हैं। तो
आज भी उनका वही भाव है, इतने वर्ष, इतने करोड़ों वर्ष होने के बावजूद भी। वस्तुतः भगवान राजा जनक जी एक श्रेष्ठ राजा थे, एक श्रेष्ठ राजा थे। और राजा विदेह, अभी हमारे रामायणी जी ने कहा, उनके विदेह अर्थात वो जो है भगवान मुख होने के कारण संपूर्ण उनका राज प्रसाद, राज सदन, महामंत्रीगण, मंत्री परिषद, सभी लोग उन्हीं की तरह थे। अर्थात जब राजा ही स्वयं विदेह राज, तो अन्य लोग भी कम साधक नहीं थे, इसलिए संपूर्ण राज्य अपने आप चलता था, ऑटोमेटिक। जैसे इलेक्ट्रॉनिक तो सब चलता है, गाड़ियां चलती है, मेट्रो चलता है, ऐसे उनका राज्य था। और आप आश्चर्य करेंगे कि राजा जनक का राज्य जो था वह अयोध्या के राज्य से कई गुना बड़ा था, बहुत बड़ा था। गंगा का जो उत्तरवर्ती क्षेत्र है, गोरखपुर देवरिया से लेकर के संपूर्ण बिहार के जो उत्तरी हिस्सा है, संपूर्ण राजा जनक का राज्य था। और पर्वतीय क्षेत्र में जहां हम लोग रहते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल और ये पूरा नेपाल, भूटान, ये बर्मा, थाईलैंड तक उनका राज्य था। बताइए कितना विशाल ज्योग्राफिकल, अभी हम देखेंगे मैप को, ये सब राजा जनक के राज्य में था। समतलीय भाग और पर्वतीय भाग दोनों था। और इतना विशाल राज्य, बहुत कम दंड का विधान होता था, नहीं के बराबर, खूब धकापेल राज चलता था। समृद्धशाली इतना रहा, इतना समृद्धशाली रहा, जो बारात गई जनकपुर में, तो शहर के बाहर जो सबसे बड़ा पहले जो मकान रहा, इतना आलीशान, इतनी अच्छी बिल्डिंग रही। मुंबई में आप देखे होंगे किसी बड़े बड़े जो आज के उद्योगपति हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और अमुक अमुक का, उनके कई गुना बड़ी थी। अयोध्या की बारात समझी कि यहीं पर अंदर जाना है, यही राजा का महल है, जाने लगे। वहां से निकला जो मकान से हाथ जोड़, कहा कि यहाँ नहीं, आगे अभी आप जाइए। अरे भाई ये किसका मकान है? बोले ये हमारे राजा का जो है सेवक है। कौन सा सेवक? तो जो स्वीपर का काम आजकल करते हैं शहरों में, नगर पालिका में, वो स्वीपर अर्थात भंगी का मकान रहा। कल्पना कीजिए इतना आलिशान, इतना सजा हुआ, अयोध्या की गलियों को झाड़ू देने वाले का मकान रहा होगा, तो सचमुच में कितनी समृद्धि रही होगी। अब इस भाव को आगे बढ़ाएंगे तो समृद्धि की साक्षात प्रतिमा तो भगवती जगजननी जानकी जनकपुर में थी, क्यों नहीं समृद्धि होगी। और विवाहोपरांत, विवाह के काल में ही आज जो टेक्नोलॉजी है, तमाम विलंब होता है पुल बनाने में, और तमाम देर होती है, तमाम ईंट पत्थर गारा सरिया लगता है तो भी टूट जाता है। उद्घाटन के पहले ही कई पुल टूट जाते हैं। बारात आने के पहले जब ये तय हो गया धनुष भंग के बाद की विवाह होगा, जितनी नदियां थी, कोसी, गंडकी, बूढ़ी गंडक, छोटी गंडक, पुन फाल्गु, ये सब गंगा, सब में राजा जनक ने फौरन पुल बंधवा दिया। कितनी समृद्धशालिता रही होगी, मानस में वर्णन है, संक्षेपीकरण सब कर रहे हैं, मैं तो संचालक, हम और व्याख्या नहीं कर सकते। अच्छा, वो विवाह होने के बाद जो वहां से धन्य धान्य जो उन्होंने दहेज में जो दिया, दहेज जो आज दहेज विवाह के साथ बहुत ही कुप्रथा है। लड़की की शादी से भी अधिक लड़की का बाप जो है परेशान होता है दहेज में। वो दहेज यानी स्वेच्छा से दी जाती थी। आज भी कोई स्वेच्छा दे उतना ही लेना चाहिए, लेकिन आज तो मांग किया जाता है। यानी दुल्हा आजकल बिकता है 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, जितना ही अच्छा है उतना ही उसकी जितनी अच्छी पढ़ाई है। राजा जनक ने स्वेच्छा से दिया था अनेक प्रकार के धन, दौलत, जेवर, गहना, आभूषण, घोड़े, हाथी। अब अयोध्या में जो लाया गया तो उन धन, वो जेवर गहना से सारी अयोध्या के राजमहल कोष भर गया। अब विचार हुआ, राजा जनक दशरथ ने मंत्री परिषद बिठाया कि इसको कहाँ रखा जाए। अब तो फिर भी बहुत तमाम गाड़ी छकड़े खड़े हैं बाहर, तो तय हुआ कि इसको चारों ओर से घेरा करके चहारदीवारी करके रख दिया जाए। वहां कमांडो सब सेना बिठा दी जाएगी रक्षा के लिए। मणि पर्वत आज भी वही है, वहां मणियों का पर्वत बन गया। बताइए कितना दिए होंगे,
जनकपुर वाले तो कहते हैं कि पानी तक जनकपुर का गया था, अयोध्या का पानी पीने योग्य नहीं था। वो खरल मूसली और चावल गया था, बनाने वाली तमाम दासियां गई थी। श्री राम जन्मभूमि के पास जो सीता रसोई है, लोग कहते हैं कि वो अयोध्या से आई हुई रसोई चूल्हा इत्यादि रहा। तो राजा जनक अत्यधिक समृद्धशाली थे, अत्यधिक धनवान थे, राजाओं में उनकी प्रतिष्ठा रही और राजा दशरथ के साथ संबंध जोड़ने में एक संत की भूमिका हुई। समृद्धशाली तो थे, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार जो धनुष को उठा करके तोड़ देगा उसके साथ शादी होगी। किसी ने धनुष उठाया नहीं, किसी से उठा ही नहीं, तोड़ेगा कहां से? तो उनको कहना पड़ा तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही, विवाह लिखा नहीं जाओ सब लोग, वीर विहीन मही मैं जानी। तो सब लोग चले जाते तो भगवती जगजननी जानकी बिना विवाह की रह जाती। उधर राजा दशरथ का जो है श्रवण कुमार के जो अनजाने में भूल से जो हत्या हो गई थी, ऐसा कहते हैं कि उनके ऊपर जो है एक कलंक तो लग ही गया था, अनजाने में हत्या हो जाए तो राजाओं में थोड़ी उनकी कम प्रतिष्ठा हो गई थी। थे बहुत श्रेष्ठ, वो भी इंद्र तक की जाकर सहायता किए हैं, युद्ध में देवासुर संग्राम में भाग लेते रहे। लेकिन इन दोनों साम्राज्यों, देखिए आज भी विवाह होता है, लड़का लड़की का दो परिवार जुड़ता है, लड़की का माता पिता परिवार, लड़के के माता पिता परिवार, गांव, दोनों दो गांव जुड़ता है। वास्तव में एक लड़का लड़की का विवाह ही केवल विवाह नहीं होता है, दो परिवार, दो गांव, दो जनपद, दो राष्ट्र का मिलन होता है। भगवती जगजननी जानकी और भगवान राम के विवाह से दोनों की विवाह तो हुआ ही, व्यवहारिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से विशाल साम्राज्य अयोध्या के और जनक का मिथिला का संबंध भी जुड़ा था। और इन संबंध को जोड़ने वाला कौन था? महर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र थे। विश्वामित्र ने देखा कि दोनों साम्राज्य जुड़ जाएंगे तो सबसे बड़ा जो इस देश पर, इस भू धरातल पर आतंकवादी उग्रवादी, जो सबसे बड़ा उग्रवादियों का सरगना रावण था, उसका सामना किया जा सकता। उनके मन में क्यों ये भाव था, इसलिए उस भाव को अंदर दबाकर वैवाहिक संबंध से जोड़ करके रावण का विनाश किया जा सकता है। ये विश्वामित्र के मन में भाव था। दूसरा भाव, दोनों साम्राज्यों की मैत्री हो जाएगी, उनकी लड़की जो है उनके प्रतिज्ञा के अनुसार मामला गड़बड़ हो जाएगा, इनकी थोड़ी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो क्यों विश्वामित्र ही एक संत ही जो है उस काल में भी दो राष्ट्र को, दो हृदय को, दो भावों को जोड़ा था, दो संबंधों को जोड़ा था। अब श्री राम विवाह की आज भी हम उस भाव को, हमारे जैसे रामायण जी का रसिक लोग आते हैं, अब अयोध्या की धरती से ही शिक्षा दीक्षा लेकर के और हमारे महामंडलेश्वर श्री महंत राम तीर्थदास जी आए हुए हैं। तो अब विवाह तो रात्रि में होगा, कुछ बारात का जितना कुछ इस आधे घंटे में वर्णन करेंगे उनके मुख से सुनिए। और श्री राम विवाह का विधिवत आनंद जनकपुर के ओर से, जनकपुर के भाव लेकर आए हुए हैं लोग। यहाँ इस मंडप में विवाह होगा। अभी तो वर्तमान में आचार्य जी जो है विवाह कराने वाले आचार्य हैं, उनके अगल बगल में राम लक्ष्मण जो बैठे हुए हैं, वास्तव में राम लक्ष्मण साक्षात आएंगे तो विवाह का आप आनंद लीजिएगा। श्री अब अपने महामंडलेश्वर श्री महंत श्री राम तीर्थदास जी महाराज हमारे सामने विषय प्रस्तुत करेंगे। तो छोड़े जाते हैं, इतना शोरगुल होता कि कोई सुन नहीं पाता क्या कौन बोल रहा है। और यहाँ सीताराम जी का अखिल ब्रह्मांड नायक का विवाह होने जा रहा है। अब ऐसे बोल रहे जैसे 6 महीने से हॉस्पिटल से निकल के आ रहे हो। अरे सिंह गर्जदा करो, सिंह गर्जदा। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। अब आई पूरी बात। अब बारात चली? हाँ, अभी बारात नहीं चली, अभी तो बारात की तैयारी हो गई। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय
अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परम। हुए श्री राम उन महावीर बलवान को बारंबार प्रणाम। श्यावर रामचंद्र की। परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, मंच पर उपस्थित महामंडलेश्वर महंत श्री रामेश्वर दास जी महाराज, परम स्नेही बड़े भाई के समान तुल्य श्री श्याम सुंदर रामायणी जी महाराज, यज्ञ आचार्य रमा बहन जी, मंच पर उपस्थित पूज्य समस्त संत चरण। आज बड़े ही मंगल का दिवस है। सभी लोग विवाह की चर्चा कर रहे हैं तो हम भी सोचते हैं थोड़ा विवाह करा के देखा जाए। रामचरितमानस में 4 विवाह का वर्णन आता है। इसमें जो रामायण पढ़ते होंगे उनको मालूम है कि 4 विवाह का वर्णन है। लेकिन आश्चर्य यह है कि 2 विवाह तो पूरे हो जाते, सामोपांग विधि विधान से संपन्न होते हैं, लेकिन 2 विचारे अधूरे रह जाते हैं। तो उसमें लगता शायद सब अधूरे वाले में है। राम जी का विवाह होता है, शंकर जी का विवाह होता है, और एक नारद जी गए थे विवाह करने, और एक सुपनखिया भी गई थी विवाह करने। राम विवाह एक, भगवान शिव का विवाह 2, नारद जी का विवाह 3 और सुपनखा का विवाह 4 विवाह का वर्णन आया। लेकिन 2 विवाह पूर्ण हुए, 2 विवाह अधूरे हुए। पूर्ण किसके हुए और अधूरे किसके हुए, और पूर्ण क्यों हुए और अधूरे क्यों हुए, इस पर विचार करेंगे। राम जी का पूर्ण हुआ तो सुपनखा का अधूरा रह गया। शंकर जी का विवाह पूरा हुआ तो नारद जी का अधूरा रह गया। बोले क्यों? बोले लड़का लड़की के विवाह कराने में एक तीसरा व्यक्ति होता है जिसका कहा जाता अगुआ। जैसे राम जी का और सीता जी का विवाह कराने में मुख्य भूमिका किसकी थी? विश्वामित्र। शंकर जी का और पार्वती का विवाह कराने में मुख्य भूमिका अगुआ कौन थे? नारद जी थे। लेकिन क्या कोई बता सकते हो सुपनखिया के विवाह में कोई अगुआ था? अपने से गई थी। राम जी को देख के क्या कहती है? बोले तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संजोग विधि रचो विचारी, और ताते अब लगी और रहम कुमारी, और मन माना कछु, पूरा नहीं कुछ, मन माना कछु तुम्हें निहारी। तुमको देख के कुछ मेरा मन मान गया। ताते अब लग रहे कुमारी। पहले क्या कही? बड़ी विचित्र तुलसीदास जी ने लिख दिया। और नारद जी के विवाह में अगुआ कौन था? अपने गए थे, किसी से पूछे नहीं, परमिशन नहीं लेने, गुरु से लिए और न माता पिता से ले, चले गए अपने। तो याद रखो बंधुओं, जो माता पिता गुरुजनों के आदेश से संबंध होता है वो सुखमय होता है, और जो अपनी इच्छा से कोर्ट मैरिज होता है, लव मैरिज होता है, वो सूर्पनखा की गति हो जाती है। जो लोग माता पिता की अवहेलना करके, गुरु गोविंद की अवहेलना करके विवाह करेंगे, उनकी दशा सूर्पनखा की होगी। और जो लोग गुरु का अपमान करके, गुरु को त्याग करके, इष्ट को त्याग करके विवाह करने जाएंगे, वो बंदर बन जाएंगे, बंदर। नारद जी बंदर बन गए, और सुंदरी जो विश्व सुंदरी थी कहती कि तुम मौसम नारी, तो सुपनखिया बन गई। तो याद कर लेना, कथा केवल हंसने के लिए नहीं है, यहां कुछ इस बात को गौर करना कि क्या कहा जा रहा है, इस पर विचार करना। इसलिए जो अपने से जाने की तैयारी कर रहे हो, रुक जाना, नहीं तो सूर्पनखा बनोगे, नहीं तो बंदर बन जाओगे। और विवाह और विवाह में अंतर है। विवाह और
ब्याह में अंतर है। ब्याह किसको कहते हैं? जो दोनों तरफ से आह निकले। आज ब्याह होता, विवाह नहीं होता। विवाह वो होता है जिसमें दोनों तरफ से वाह वाह होता, और ब्याह वो होता है जिसमें दोनों तरफ से आह निकलता हो। लड़की वाला देते देते आह करके मर जाता है, और लड़का वाला लेते लेते कहता कुछ नहीं मिला, दलित मिल गया। विवाह तो राम जी का हुआ था। विवाह वाह वाह। अभी हमारे महामंडलेश्वर जी के द्वारा सुना कि इतना दहेज आया था जनकपुर से कि अयोध्या में रखने की जगह नहीं थी। लेकिन हमारे अयोध्यावासी भी कमजोर नहीं थे। जितने जनक जी ने दिया था उसका 4 गुना मिला करके गऊ को स्वर्ण से सींग मार करके, चांदी की खुर मरा करके, विधिवत आज पोशाक पहना करके विप्रों को दान दिया था। ये थी परंपरा। और आज तो कितना समेट के धर लेंगे पता ही नहीं चलता। हाँ, तो आह निकल रही दोनों तरफ से। लड़की वाला देते देते मर जा रहा, लड़का वाला लेते लेते मरता रहता, फिर भी कहता कुछ नहीं मिला। बहुत दरिद्र घर में पहुंचे। तो बंधुओं, विवाह करो, ब्याह मत करो। आज ब्याह हो, हमारे सारी परंपराएं बदलती चली जा रही है। अभी हमारे आचार्य जी ने एक शब्द कहा था कि हाथ में पिता जल लेकर के संकल्प करता है, एक एक बूंद जब जलता है तो मानो एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। लेकिन वो विवाह किसके ऊपर होता संकल्प किया जाता है, और किस कन्या का दान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है? शास्त्र सम्मत से अगर पूछते हैं तो विवाह का कन्यादान तब होना चाहिए जब वो मासिक धर्म में नहीं आती। उसके पहले कन्यादान हो जाए तो उस कन्यादान का फल होता है। आज तो कन्यादान नहीं, नारी दान होता है। मैं बड़ी खुली बात कह रहा हूं, जबकि ये बात स्पष्टी है। ये विद्वान लोग हैं मंच पे ये बात छिपा रहे हैं। अगर ये बात गलत हो तो कह दे, खंडन करे, कहा गलत बोल रहे हो। राम जी का विवाह 12 साल के थे और श्री किशोरी जी का 7 वर्ष की थी। वो कन्यादान था। उस कन्यादान का फल था अश्वमेध, जिसको शास्त्र कहते हैं जिन कन्या धन को दान दियो तिन और को दान दियो न दियो। तो कन्यादान उसे होता है। आज कन्यादान नहीं, कोर्ट मैरिज वाला कन्यादान नहीं है। ये तो आज तो फिर ठीक ही है। नहीं, हमारा संकोची स्वभाव तो आप ही बताइएगा। बोले हनुमान जी महाराज की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो विवाह की प्रक्रिया है वो आप रामायण, हमारी रमा बहन ने भी पहले एक शब्द बहुत बढ़िया बोला था। यद्यप मैं पूरा नहीं समझ पाया इनका, क्योंकि गुजराती में बोल रहे थे मेरी बुद्धि में लेकिन उसमें एक शब्द मैं पकड़ पाया कि रामायण जो है साक्षात कल्प वृक्ष है। रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामचरितमानस को तुलसीदास जी महाराज कल्प वृक्ष के रूप में ले आए, क्योंकि जब कल्प वृक्ष यहां आया तो देवताओं ने खलमंडल किया। बोले अगर सब कल्प वृक्ष के नीचे आ जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? इसलिए देवता लोग उस कल्प वृक्ष को चुरा करके ले गए, स्वर्ग में रख दिए। पृथ्वी कल्प वृक्ष से निराश हो गई। तो एक संत ने बीड़ा उठाया, बोले ठीक है देवताओं, तुम कल्प वृक्ष ले जाओ, लेकिन कल्प वृक्ष में दूसरा प्रकट कर देता हूं। और वो रामचरितमानस के रूप में कल्प वृक्ष को यहां पर तुलसीदास जी महाराज लाए, जिसका अवगाहन करने मात्र से ही मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। रामायण सुरतर की छाया और दुख भय दूर, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठ के जो कामना करेंगे कल्प वृक्ष वो पूर्ण करता है, उसी प्रकार से रामचरितमानस में जो अवगाहन करते हैं उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, गोस्वामी जी ने कहा। लेकिन ये कब? रमा बहन ने पहले चौपाई बोला था, जो यही कथई स्नेह समेता और कई है सुनी है
समुझी सचेता, तो हुई है राम चरण अनुरागी, और कलिमल रहित सुमंगल। ये राम ये सुरतर कब फल देगा? जब कहने वाला भी सचेत कहेगा और सुनने वाला भी सचेत होकर के सुनेगा। ये नहीं कि हम पाला चूम करके चले जाए और आप भी सोचो वाह वाह बहुत बढ़िया कहा, लेकिन उसका मनन नहीं किया। नहीं, जो यही कथई स्नेह समेता, तो कई है सुनी है समुझ सचेता। सचेत होकर के ये बात को स्वामी जी ने भगवान शंकर के माध्यम से पार्वती के द्वारा कहलाया कि बटतर कई हरि कथा रसाला, और दक्ष प्रजेश भयेत ही सावधान कर मम पुनि शंकर, और लागे कहन कथा अति। सावधान होकर के कहना चाहिए और सावधान होकर के सुनना चाहिए, लोक रंजन की दृष्टि से नहीं कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। जो सत्य है उसे कहना चाहिए।